We start today's class. So in the last class, I discussed general linear programming problem. How to write a general LPP and then how to write canonical form. So in the last class, we were discussing how to write canonical form. Let me recall once again. Yes. So canonical form we were discussing. Whiteboard is visible? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Okay. First step is what? कि problem should be है ना of maximized type. So LPP, the objective function, in short I'm writing है ना, should be in max type always है ना. These are the standards for canonical form. The first thing is what? It should be always maximum type. So I told you that if some problem is of minimize, we can convert it into maximize है ना. So minimize fz can be converted to max type by using this formula. So I can write minimize of fz लिख लो या z लिख लो, सेम थिंग है ना. कहीं कहीं fz लिखना है एज ए फंक्शन z इज इक्वल टू fx, इसे मिनिमाइज z लिख लो, एक ही बात है क्योंकि फंक्शन ऑफ x होता है अल्टीमेटली. So minimize of z can be converted by using this formula minus maximize of minus z. So I told you you can see yesterday I explained by one example also कि minimum of z will equal to maximum of minus z है ना. Somebody was asking that set example, so I took one example. Suppose you have some set, I was taking 1 2 3. Suppose I am taking 5 elements, not 10. So you know, if I am taking some x belongs to this, so here what is minimum? If I will see what is minimum, so it will be 1 है ना. Now if I am taking minus x, so minus x means if I am taking set minus, so minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. So now if I will take maximize of minus x, so how much it will be? It will be minus 1 क्योंकि minus 1 is the maximum है ना. So this formula I can write minimize z is equal to maximize of minus z है ना. और आंसर फाइनल में जो आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल गिव यू द सेम वैल्यू minimize z. This concept I will be using when I will be solving the problem. Minimization problem can be converted to maximization problem. Second property of this canonical form is all the equality signs, all the equality तो होती नहीं, इसमें inequality होती है तो inequality ले लो. All the inequality sign should be of less than equal to type. This is the second property. All the inequality sign should be less than equal to type. सारे less than equal to होने चाहिए है ना. So how you will check greater than equal to sign, you know है ना. So suppose I am taking some a11 x1 plus a12 x2 and so on a1m xm. Suppose you have some inequality, a constant greater than equal to some, suppose b1, but I want the inequality in less than, so how I can convert the sign? Any idea? सब मल्टीप्लाई कर दे -1 से. माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना. तो इफ यू विल बी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू, सो आई कैन कन्वर्ट, so this
can be converted into less than equal to sign by multiplying -1 या नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, है ना. यू नो इट्स अ सिंपल अलजेब्रा. माइनस से साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा. दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग व्हाट माइनस a11 x1 minus a12 x2 minus and so on minus a1m xm लेस देन इक्वल टू माइनस b1. यहाँ माइनस साइन आ जाएगा बस कांस्टेंट में, लेकिन साइन आपका आपके फेवर का मिल जाएगा, है ना, मीन्स कैनोनिकल फॉर्म का. सो दिस कैन बी कन्वर्टेड बाय दिस. नाउ व्हाट अबाउट इफ यू हैव सम इक्वालिटी, है ना. एज आई टोल्ड यू इट इज पॉसिबल समटाइम्स यू मे हैव इक्वालिटी आल्सो, है ना. इक्वालिटी साइन को कैसे करेंगे. इक्वालिटी साइन कैन बी कन्वर्टेड टू लेस देन इक्वल टू साइन as follows. Suppose you have one equality sign. I am writing one equation a11 x1 plus a12 x2 and so on. a1m xm is equal to b1, है ना. b1 ले ले रहे हैं. So what will happen? You know that any equality this can be written as a11 x1 plus a12 x2 plus and so on a1m xm less than equal to b1 and a11 x1 plus a12 x2 and so on a1m xm. ये लिख सकता हूं. इस इक्वालिटी को आई कैन राइट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, है ना. ये इसी के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू दिस है कि नहीं है. जी सर. Any equality will be equivalent to this. ना, if you having x less than equal to 2, x greater than equal to 2, इसका मतलब क्या होता है. x, है ना, you know this thing. So it will be taking simultaneously, है ना. अगर simultaneously it is happening, so we say that the quantity is equal to the right hand side. So this single equality can be written equivalent to these two inequalities, है ना. And all the signs should be less than. तो first to less than है और second less than नहीं है. What to do here? Same minus. हाँ, तो इसको same आप by multiplying minus sign it will be converted into less than, है ना. क्योंकि first तो इसकी equality less than है, so no problem. और second can be converted, so this can be converted by taking minus sign. Only this equation less than equal to a1m xm less than equal to minus b1. इसी के इक्वल है ये. Okay, so in this way you can convert the equality sign also less than equal to. And all the variables are non-negative. ये restrictions होती है हमारी हमेशा. थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी, all the variables are non-negative. This is the restriction always we have कि all your x i's या j से कहेंगे greater equal to 0 where I is 1 2 m, है ना. your key decision variables जितने ही प्रॉब्लम्स हमें गिवन होंगे. If some variable is unrestricted, है ना, then it can be unrestricted. क्या होते हैं, sometimes it will be given that some variable is unrestricted. Unrestricted का मतलब क्या है, उस पर कोई restriction नहीं होगी कोई, अगर मतलब it is not given, it is non-negative or what. So unrestricted, उसे हम unrestricted कहेंगे. अगर प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ होगा कि this variable is unrestricted. Unrestricted variable ना, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो हो, तो अनरेस्ट्रिक्टेड है ना. दैट मीन्स व्हाट, मे बी पॉजिटिव
मे बी निगेटिव और मे बी जीरो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है इसकी, हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन इस पे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द difference between two non-negative variables, okay, that means if x3 is given to you, x3 या x4 any variable है ना, if x3 is unrestricted then x3 को I will write x3 is equal to x3 dash minus x3 double dash where x3 dash greater than equal to 0 and x3 double dash greater than equal to 0 है ना। तो इससे क्या होगा देखो, अब अगर इसमें x3 double dash greater than हुआ x3 dash तो it will be negative, if x3 dash is greater than x3 double dash it will be positive, and if they are equal they will be 0 है ना। तो we can write the unrestricted variable to difference of two non-negative variables, ये लिख देंगे। तो इससे रहा unrestricted ही है, क्योंकि अभी your x3 का साइन is depending on the value of x3 dash and x3 double dash है ना। ये डिफरेंस आपको पता है, this difference may be positive, this difference may be negative, this difference may be 0. It depends on the choice of the x3 dash and x3 double dash, but it is the way of writing the unrestricted variable है ना into this difference of two non-negative variables when we are writing this canonical form. So these are the properties for this. Next form is the standard form. टू फॉर्म्स है कैनोनिक, एक और मैट्रिक्स फॉर्म भी होती है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म इज आल्सो इजी इस वे बिकॉज यू नो यू आर यूजिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म विच यू हैव यूज्ड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम कैन बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है ना। तो जनरल LPP और max or minimize z is equal to c1 x1 plus c2 x2 and so on cn xn subject to the constraints a11 या i1 लिख ले रहा हूँ मैं भी, जनरल ले रहे हैं ai1 x1 plus ai2 x2 plus and so on a in xn is equal to some bi where I is 1 2 suppose n या m, कुछ भी हो सकते हैं, n हो या m हो, you can take m also, depends number of constants, and these x1 x2 xn greater than equal to 0. So means what are the characteristics of this standard form? Characteristics क्या हो गई? First thing is what, the problem may be of maximize or minimize, no restriction is there, all the constants should be equality है ना, ये equality में होंगे, and the right hand side of each constant is non negative. ये जो right hand side है ये हमेशा non negative होनी चाहिए, जो constant आ रहा है it should be always non negative. These are the restrictions there है ना। ओके ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, आपने पढ़ी है इन योर स्कूल टाइम आल्सो, अगर याद हो कि यहाँ पर हमेशा इक्वालिटी होती थी, नॉर्मली हम कांस्टेंट को पॉजिटिव लेते थे, राइट हैंड साइड को फिर सॉल्व करते थे। यहाँ ऊपर आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इट मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो ये फॉर्म्स होती हैं कुछ, दीज आर टू फॉर्म्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। तो यू नो कि इफ इन द प्रॉब्लम सम मैक्सिमाइज मिनिमाइज गिवन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर यू हैव सम less than equal to sign or greater than equal to sign and you want to change the equation into standard form, that means you want to change inequality into equality, how you will change it बताइए। सर कुछ ऐड कर देंगे या कुछ माइनस कर देंगे? by adding xn plus 1 xn plus I
उनको क्या बताया था जो हम ऐड करते हैं और माइनस करते हैं? सिलेक्ट वेरिएबल और दो थे सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल। यस सरप्लस। yes exactly correct good. So inequality signs, if there is a problem where inequality signs are there, so inequality signs है ना can be converted to equality sign by using slack and surplus variables. Slack and surplus variables, ये आपको पता है सरप्लस वेरिएबल क्या है, सिलेक्ट क्या है। तो अगर कोई फॉर्म आपको दे रखी है, प्रॉब्लम आती है कि चेंज द इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, सो आई विल बी यूजिंग सिलेक्ट सरप्लस डिपेंडिंग ऑन द इनइक्वालिटी कि लेस देन है और ग्रेटर देन, आई विल कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, इट विल बिकम स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, वन मोर फॉर्म देयर, द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स। मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म इज इजी फॉर्म, कम स्पेस में यू कैन से द ऑल द थिंग, है ना। मैथमेटिक्स इज इटसेल्फ अ लैंग्वेज। इफ यू वांट टू से समथिंग मैथमेटिकली, so you can express in a simpler way, you know this thing। infinite thing को भी you can represent by mathematically finitely, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ y is equal to mx plus c, what is this? लाइन सर। कितनी लाइन है? इनफाइनाइट है सर। हाँ, इनफाइनाइट लाइन नहीं, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना। तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, देखो। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि इनफाइनाइट थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फाइनाइटली। वरना आप लाइंस प्लॉट करते रहो, मैं आपसे कहूँ प्लॉट करो इन लाइंस को, इनफाइनाइट है, प्लॉट करते रहेंगे आप, करते रहेंगे, बट इन जनरल आई कैन राइट दिस वे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इससे आप आराम से देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को में हम बहुत सी चीज़ों को आराम से कह सकते हैं। दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। सो आई कैन राइट द प्रॉब्लम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z is equal to cx, ax is equal to b, and this x greater than equal to 0. Okay, so it is the problem here। c means what? अब now यहाँ पर x means not a thing, x does not mean कि you have x as single variable। x का मतलब क्या है? x is representation, it means actually your variables, है ना। if n is there, then c means what? c is not constant, c means is a vector representing your constants, c1x c2x, जो cost coefficients होते हैं। और ये जो b है, b I will write b transpose is equal to b1 b2 and so on bm। why I am writing transpose? because you know this b will not a row vector, it will be a column vector, है ना। so here you are using writing b, तो यहाँ writing b transpose। इसका मतलब क्या हुआ? b transpose है ये, तो इसका मतलब b क्या होगा? कॉलम, है ना। if b is a row matrix, तो b transpose क्या हो जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। you know this thing, matrix properties? जी सर। हाँ, Yes, तो sir. so that's why if you are writing here b, तो I will write b transpose। तो जो वेक्टर आपका कॉलम में आएगा उसको मैं b transpose से लिख रहा हूँ, जो रो में आ रहा है उसको मैं नॉर्मल x और c लिख रहा हूँ। ये सब वेक्टर्स हैं, है ना। when you have more than one variable x1 x2, तो वो हमारा वेक्टर कहलाता है। और a क्या है यहाँ पर? a, what is a? a is the matrix, you know। इसको मैं aij ऐसे लिख सकता हूँ, I have used this notation। कितना m क्रॉस n की, तो इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका वही सिस्टम क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी हम पीछे लिख रहे थे, a11 x1 a12 x2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ पे इक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा कि अगर आप कैनोनिकल फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो यू विल बी राइटिंग मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू cx, x ax लेस देन इक्वल टू b। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो इट इज द फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म इज अ फॉर्म
for the representation. So when you are writing a problem, जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं आपकी, one problem is there. Let us take one problem. Rewrite in standard form the following LPP. If LPP is given away, all of you take your notebook and pen. I am writing the problem. You just solve in your notebook. Minimize of min, short में minimize में मैंने लिख दिया. Z is equal to 2x1 plus x2 plus 4x3 subject to the constraints minus 2x1 plus 4x2 less than equal to 4, x1 plus 2x2 plus x3 greater than equal to 5, 2x1 plus 3x3 less than equal to 2, where x1, x2 they are given to you non-negative and x3 is given you unrestricted. साइन. चलो, तो ये प्रॉब्लम गिवन है भाई. इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना. चलिए बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने ही बताया. आई टोल्ड यू व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ऑल द इनइक्वालिटी साइंस शुड बी इक्वालिटी साइन. ओके, बताइए. क्या करें? तो फर्स्ट थिंग, इसको यू हैव टू चेंज इनटू इक्वालिटी. सो हेयर यू हैव लेस देन इक्वल टू, है ना. तो यू नीड व्हाट? select variable. Select variable. हाँ, so we need one select variable here and one surplus variable here, है ना, and one more select variable here. सिर्फ इसी में तो यूज करते हैं जो constants हैं. so we will be needing 3 variables, है ना. तो इसके लिए क्या करें? यहाँ लिख दे रहा हूँ. so let you have, तो आई एम टेकिंग let, क्योंकि 3 तक तो है तो x4 ले लीजिए. let x4 x5 be the select variables and of course they will be greater equal to 0, है ना. ये भी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होल्ड करेंगे, greater equal to 0. and x6 be the surplus variable. So what will happen? Here I am writing. So problem will become, अब आप इसको चाहे तो मिनिमाइज में लिख लें या चाहे मैक्सिमाइज में करना चाहे तो मैक्सिमाइज. मिनिमाइज लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे ही लिख सकते हैं. 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3. अब देखिए माइनस 2x1 प्लस 4x2 एंड यहाँ पे क्या कर दूं मैं? माइनस प्लस. सिलेक्ट वेरिएबल क्या होगा? प्लस होगा सर. प्लस x4 इज इक्वल टू 4, है ना. इक्वालिटी चाहिए मुझे. सेकंड कांस्टेंट विल बिकम x1 प्लस 2x2 प्लस x3. यहाँ पर यू हैव सरप्लस, तो मैंने x6 को सरप्लस लिया. आप किसी को भी सरप्लस ले सकते हैं, x5 को ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन. सो माइनस x6 इज इक्वल टू 2 and 2x1
प्लस 3x3 प्लस x5 इज इक्वल टू 2। लेकिन अभी यहाँ पर हमें गिवन था कि जो x3 है, दिस x3 इज x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। तो अनरेस्ट्रिक्टेड में क्या बताया था हमने कि अनरेस्ट्रिक्टेड में x3 को आई विल हैव टू राइट डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, है ना। तो x3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। हियर x3 विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डैश एंड x3 डबल डैश बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 3 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द रेस्ट्रिक्शन। तो दिस जहां जहां x3 था, इट विल बी कन्वर्टेड टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। सो इट विल बिकम, so this can be written as, दोबारा लिख देना है, मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 4 x3 डैश माइनस x3 डैश डबल डैश। एंड वन मोर important थिंग कि व्हेन यू आर राइटिंग इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल, वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं इन द कॉन्स्टेंट्स, उन सब वेरिएबल की कॉस्ट वैल्यू यहाँ गिवन होती है। जैसे x3 तक था तो यू हैव 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3। नाउ यू आर यूजिंग 3 मोर वेरिएबल्स, 4x4 x6 x5, है ना, बट दे आर सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि इनका रोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ नहीं है, ये हमने एज्यूम कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आता है आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यू विल हैव अ इक्वेशन ऑफ की डिसीजन वेरिएबल्स, बट दीज x4 x5 x6 दे आर नॉट की डिसीजन वेरिएबल्स, है ना। आई हैव अज्यूम्ड इट फॉर सॉल्विंग द सिस्टम। तो इसकी वैल्यू इसमें क्या होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, दे विल हैव नो रोल। तो आई विल राइट हियर 0x5 प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6, है ना। ये ध्यान रखना, इसको हमें लेकिन लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में विद द कोएफिशिएंट 0। 0 क्यों लिया, इज इट क्लियर? बिकॉज they don't have any role in the problem. I have just considered for solving the problem. But you will write 0x4 plus 0x3 plus x5 plus 0x6, है ना। यहाँ पे हम 0 वैल्यू देके इसे लिखेंगे। And the first restriction will become minus 2x1 plus 4x2 plus 4 plus x4 is equal to 4, x1 plus 2x2, x3 को I will write x3 dash minus x3 double dash minus x6 is equal to 2, and last one इक्वल टू 5 होगा सर। 5 है कहाँ पर, अच्छा यहाँ पे ये सेकंड में। चलो 5 को, चलिए ओके थैंक यू। 5 and then this plus 3 x3 dash minus x3 double dash and plus x5 is equal to 2, where all these xj greater than equal to 0. You can write where all xj greater than equal to 0, ना। Okay, so in Yes, this sir. way you can write the standard form. Simple calculation थी, कुछ ज्यादा वो नहीं था उसमें, बस आपको इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करना था और यहाँ साइन देखने थे। So it is the way of, सर अनरेस्ट्रिक्टेड, सर अगर अनरेस्ट्रिक्ट दे रखा होगा तो उसको x3 डैश माइनस x3 डबल डैश में लिखना ही पड़ेगा या x3 लिख ही सकते हैं डायरेक्ट? नहीं नहीं लिखना पड़ेगा, ये इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हम क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है एक्चुअली, इसलिए अभी हम इससे लिख रहे हैं। क्योंकि व्हेन आई विल एक्सप्लेन द सिंपलेक्स मेथड, जो नेक्स्ट मेथड आएगा व्हेन यू आर हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, तो वहां पर हमें अगर कोई अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है तो उसको हम इस तरीके से लिखने, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव टू राइट इन दिस वे। इसमें एक आध प्रॉब्लम आप करिएगा, मैं आपको दे दे रहा हूँ। आई एम राइटिंग वन प्रॉब्लम, ये आप सॉल्व करेंगे खुद। ऐसे तो प्रॉब्लम नंबर ये आपके इट इज गिवन, पेज नंबर इज गिवन 341 पेज पर है, नहीं 341 प्रॉब्लम पेज 83 पर। Reduce the following LPP to its standard form. Reduce to standard form.
max z is equal to 3x1 plus 4x2 plus 6x3 subject to the constraints 2x1 plus x2 plus 2x3 greater than equal to 6, it is 2, and 3x1 plus 2x2 is equal to 8, 7x1 minus 3x2 plus 5x3 greater than equal to 9, x1 non-negative, x2 non-negative, x3 unrestricted. ठीक है, इसे करिएगा। अपनी जो नोट्स आप बना रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोटबुक, उसमें यूनिट 1 डाल के ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है भाई, चलो। सो नेक्स्ट थिंग, लेट्स टेक नेक्स्ट थिंग, next important thing in fact we have convex set. No, it is also important concept, convex set. In fact, convex set, convex function, they have a very important theory, and it's a interesting research area. Okay, whenever a set is convex or whenever a function is convex, how the optimization problem will work, how we can solve it, है ना? So for defining convex functions, हाँ बोलिए सर। ये थर्ड कांस्टेंट में 2 बार x3 है सर? नहीं यार, 2 बार नहीं होगा, ये x2 है, सॉरी, इट इज x2। 2 बार होता तो हम एडजस्ट कर देते हैं ना। थैंक यू फॉर करेक्शन। 3x2 है प्लस 5x3, यस। सो यार इस बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल रही ना किसी कहीं पे भी, आई थिंक नहीं है अवेलेबल, अगर होती तो मिल जाती। किसी ने सर्च किया कहीं किसी लिंक पे? नहीं है सर, अवेलेबल नहीं। ताहा वाली मिल गई सर, एमडी कौन सी? ताहा वाली। ताहा वाली तो मिल गई होगी एमडी ए ताहा। हाँ वो तो मिल जाएगी। ताहा वो तो एक्चुअली फॉरवर्ड राइटर की है, उसमें तो मिल जाएगी, अच्छी बात है। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये इंडियन ऑथर की शायद ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इस बुक को मैंने इसलिए फॉलो किया है कि इसमें थोड़ा सा जो पैटर्न है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो इसलिए मैंने इस बुक से फॉलो कर लिया है थोड़ा सा। बाकी प्रॉब्लम्स तो आप जो इसमें प्रॉब्लम्स है वो ताहा में भी मिल जाएंगी आपको, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, तो यू कैन ट्राई सम अदर प्रॉब्लम। एक बुक और आती है एस.सी. गुप्ता, उसमें भी आप देखेंगे कि इंडियन ऑथर की एस.सी. गुप्ता, वो भी यूनिवर्सिटीज में चलती है। एस.सी. गुप्ता से भी आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। क्या ये तरुण शर्मा? सर बुक में इस प्रॉब्लम में जेड में जेड स्टार लिखा हुआ है। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जेड स्टार नोटेशन ले लिया उन्होंने, आप जेड लिख सकते हैं, वो एक नोटेशन सेम है सर दोनों? हाँ वो नोटेशन है, मैंने बताया ना, Yes, दैट इज अ नोटेशन कि जेड स्टार। एक्चुअली उन्होंने क्यों जेड स्टार लिया है कि व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम, तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ न्यू प्रॉब्लम बनेगी, है ना। जैसे हमारी अब देखें तो ये न्यू प्रॉब्लम बनी है, तो जेड ये था, अब जो न्यू बनी इसको यहाँ मैं जेड स्टार लिख दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ न्यू थिंग नाउ, है ना। तो उन्होंने क्या Yes, करा स्टार्टिंग में कि प्रॉब्लम में जेड स्टार दे दिया है, इसलिए दिया है जेड स्टार कि जब आप नई प्रॉब्लम इसको चेंज करके यू विल राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वहां पर यू विल राइट मैक्स ऑफ जेड, मतलब क्योंकि न्यू दिस इज अ डिफरेंट थिंग, तो इसलिए दे आर यूजिंग फॉर डिफरेंट नोटेशन फॉर डिफरेंट फंक्शन, है ना। जैसे ये अगर एफ एक्स था तो वो जी एक्स हो गया, तो वही जेड स्टार है तो उसे जेड से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा आप। ओके ओके सर। वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दोनों ही जेड है, एक अगर जेड है दूसरा जेड स्टार ले सकते हैं, या आप इसे एफ एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। किसी किसी बुक में इसको जेड स्टार ना लिख के एफ एक्स लिखते हैं कि ये एफ एक्स है, तो आपका जो नया फंक्शन बनेगा आप उसे जी एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए तो इसको करके, हाँ सो नेक्स्ट थिंग वी हैव कॉन्वेक्स सेट्स, है ना। So before defining convex set, I will need a line segment, है ना, क्योंकि line segment will define this convex set. Line segment. So I am taking line segment in Rn. R2 में आपको पता line segment. Line segment क्या होता है, कोई बताएगा? What is the difference in line segment and line?
सर लाइन सेगमेंट तो 2 पॉइंट के बीच में बना देते हो, वो लाइन सेगमेंट हो गया। Line segment has 2 endpoints. लाइन में सर सिंगल एंड पॉइंट नहीं होते सर। तो लाइन का मतलब, तो इफ यू हैव लाइन इट मींस इनफाइनाइट लाइन है ना। लाइन की अगर आप देखेंगे कि यू No स्टार्ट endpoint. इट डज नॉट हैज एनी एंड पॉइंट। ठीक, अगर इट हैज अ एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट अगर है, ओनली वन एंड पॉइंट इज देयर, तो क्या कहते हैं इसको? रे बोलते हैं सर। यस करेक्ट। तो ये तो आपकी ये लाइन है, नो एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट इज देयर, इट इज कॉल्ड रे। इसको हम रे बोल देते हैं, एरो लगा सकते हैं। और इफ यू हैव अ लाइन और इसमें यू हैव अ 2 पॉइंट फिक्स, सो यू आर टेकिंग वन फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पार्ट इज देयर। तो ये जो आपका फिक्स आ रहा है इट इज कॉल्ड सेगमेंट या लाइन सेगमेंट, क्योंकि यू आर टेकिंग अ सेगमेंट फ्रॉम द लाइन, सो इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स है, यू विल बी हैविंग 2 फिक्स एंड पॉइंट्स, कुछ भी हो सकते हैं ए बी। तो द लाइन सेगमेंट इन आर एन, ये आपके पास R2 में, इसी को RN में कर सकते हैं, क्योंकि RN में भी अगर आप लाइन प्लॉट करेंगे आएगी वो लाइन ही। क्यों भाई, RN में लाइन प्लेन नहीं बन जाएगी? व्हाट इज द, है ना, R3 में लाइन क्या है, सेम थिंग। सो इक्वेशन बदल जाएगी उसकी। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू points, suppose I am taking one point is x1। अभी अगर Rn की बात कर रहा हूं मैं, तो x1 में आपके पास क्या होंगे ये, तो x1 को मैं ऊपर सफिक्स में 1 लिख दे रहा हूँ ना। आपने ये ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स में नोटेशन इस्तेमाल कर लिए कई बार, कि ऊपर हमने लिख दिया xn1। इसका मतलब क्या है कि ये x1 पे पॉइंट है और n इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 को मैं यहाँ पे x12 ऐसे लिख दे रहा हूँ, x12 x22, यानी कि x2 पे ही आपके पास ये पॉइंट्स है ना। इट इज जस्ट अ नोटेशन। या आप चाहे तो xy ले सकते थे, x1 x2 xn y1 y2 yn, whatever you want to take। so this is given by lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda में कुछ रेस्ट्रिक्शन होगी भाई? है ना, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन कि लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 1। अगर लैम्डा 0 1 आप नहीं फिक्स करेंगे तो ये आपका लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि इफ यू विल गिव लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, देखो you will be getting your x1, you can see here for lambda is equal to 1 it will give you x1। तो x1 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। for lambda is equal to 0, put here 0, how much you are getting, x2। x1 plus तो ये x2 आपका आप क्या हो गया, सेकंड पॉइंट। तो ये 0 पर you are getting your x2, at 1 you are getting your x1। तो ये तो आपके एंड पॉइंट्स हो गए। अब नाउ लैम्डा में यू कैन गिव इनफाइनाइट वैल्यू। जैसे लैम्डा अगर आपने हाफ दिया तो कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 बाई 2, तो मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना। दिस इज योर x1 प्लस x2 बाई